कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। देखो, बहुत ही प्यारा और बहुत ही पॉपुलर लेसन है, थ्योरेटिकल लेसन है, पूरा का पूरा थ्योरी आपने पढ़ा इसमें। सबसे पहले व्हाट इज कैलकुलेटेड मास, आई विल एक्सप्लेन यू। कैलकुलेटेड मास, टोटल मास ऑफ सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन for any nucleus is known as calculated mass. Calculated mass m suffix c is equal to mass of proton plus mass of all neutron. Okay, and the real mass of any nucleus is always less than the calculated mass, and that difference is known as mass decay. Means some part of total mass of proton and total mass of neutron convert in the form of energy for binding protons and neutrons to forming nucleus shape, and hence the real mass of any nucleus is less than the sum of total mass of proton and total mass of neutron, and this lack of mass is known as mass decay, and this mass decay convert into the form of energy which is known as binding energy. And what is the binding energy? Binding energy के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। Amount of energy required for tied up protons and neutrons with each one to forming nucleus shape is known as binding energy. उल्टा भी बताए हैं, required of amount of energy for free up protons and neutrons with each other in any nucleus is known as nuclear energy. The ratio of nuclear energy with nuclear number is known as binding energy per nucleon. याद आया बेटा? उसके बाद आपको बताए थे न्यूक्लियर फिजन। What is nuclear fission? When any neutron bombarded over any heavy nucleus, then it divided into two or more than two small nuclei, and this phenomenon is known as nuclear fission, in which three new neutrons formed and some part of mass of heavy nuclei convert in the form of energy. Okay, और मिस्टर आटोहान एंड स्टार्समैन फाइंड फर्स्टली न्यूक्लियर फिजन प्रैक्टिकली। They saw when neutron bombarded over any uranium nucleus, then it divided into krypton and barium nucleus. Three new neutron formed and some mass of uranium converted into form of energy. समझ आया बेटा? ये स्टारमैन और जो है आपको बताए थे कि फर्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था न्यूक्लियर फिजन का। याद आया? न्यूक्लियर फिजन इज सच टाइप ऑफ रिएक्शन which is different from the reaction of radioactive decay. And what are the differences in radioactive decay and nuclear fission? हमने एक्सप्लेन किया है न्यूक्लियर फिजन और रेडियोएक्टिव डिके में डिफरेंसेज। न्यूक्लियर फिजन इज एन आर्टिफिशियल रिएक्शन, बट रेडियोएक्टिव डिके इज नेचुरल रिएक्शन. देयर इज रिक्वायर्ड ऑफ स्टार्टिंग न्यूक्लियर फिजन after bombarding neutrons, but there is no any requirement of starting nuclear radioactive decay. It is
सेल्फ ऑटोमेटिकली स्टार्टेड रिएक्शन। ठीक है बेटा। और तीसरा क्या बताए थे, जानवी बता रही हैं, रेडियो एक्टिव डिके इज अ मच स्लो रिएक्शन, इट्स स्पीड इज वेरी स्लो, एंड न्यूक्लियर फिजन इज वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन which completed in 10 to the power minus 7 second, means very small time. In nuclear fission, large amount of energy released, while in radioactive decay, no energy released. In nuclear fission, new nuclei is formed, atomic number and atomic weight become half of the ancient initial atomic number and atomic weight. But in radioactive decay, atomic number and atomic weight decreases only 2 to 4. Okay? एक और है क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन is controlled, can be controlled by use of moderator and neutron absorber, but there is no process to control the radioactive decay reaction. Okay? फिर उसके बाद बेटा हमने आपको कल की डेट पे बताया था क्रिटिकल मास एंड क्रिटिकल साइज। टोटल मास ऑफ एनी फिजनेबल सबस्टेंस required for nuclear chain reaction is known as critical mass, and critical mass of uranium atom is 14.2 kg. ठीक है, and size for fissionable substance required for fissionable substance is known as critical size for nuclear chain reaction. अब आपको जो है कामिल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बताए थे कि व्हेन न्यूक्लियर फिजन स्टार्टेड एंड इफ न्यू फॉर्म न्यूट्रॉन कोलाइड विद न्यू फॉर्म न्यूक्लियाइज एंड देयर न्यूक्लियर फिजन स्टार्टेड अगेन, देन न्यूक्लियर फिजन टेक्स ओवर इन चेन फॉर्म. Nuclear reaction, nuclear fission, after nuclear fission, after nuclear fission, and this reaction started till complete mass of initial nuclei converted in the form of energy, and this type of reaction is known as chain reaction of nuclear fission, which is of two types, controlled and uncontrolled. When chain reaction of nuclear fission cannot be controlled and total final mass of initial nuclei completely convert into the form of energy, a huge amount of energy, heat energy, sound energy, and heat 10 to the power 7 order temperature increased, then this type of reaction is uncontrolled chain reaction, and due to this reaction destructive energy created, and it cannot be used in any productive manner. There were some loss of men, money, etc. Okay, and atom bomb is the such type of device which is based on the uncontrolled chain reaction. And when chain reaction of nuclear fission is controlled with the help of neutron absorber as cadmium boron rod and moderator as heavy water, solid CO2, etc., then the nuclear fission formed in very slowly process, and energy released in this manner can be used in productive way, and this type of reaction is known as controlled chain reaction. Nuclear reactors are based on the chain nuclear
कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन। समझ आया बेटा? अंग्रेजी में बात कर रहे हैं क्या? आज अंग्रेजी चल रही है, इंग्लिश बता दिए सर। तो इस तरह से जो है प्रज्ञानदान हम लोगों ने समझा ये सारी बातें। आज बेटा मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल टाइप का डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल टाइप का मतलब कि अगर मैं इन्हें 1-2 हेडिंग बता दूँ तो आपको न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा। आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट अमाउंट एनर्जी फॉर्म्ड इन न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम, न्यूक्लियर फिजन ऑफ ड्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ऐसो ऑन। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी look here, binding energy of deuteron per nucleon, binding energy of deuteron per nucleon, डियर स्टूडेंट्स, जो चीज बताने जा रहा हूं वो एक तरह से न्यूमेरिकल भी हो सकता है। आपके बुक में आपको जो है पेपर में न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि ड्यूट्रॉन का मास इतना है, ड्यूट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके मास इतना है, ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ। न्यूमेरिकल भी हो सकता है। और यहाँ हम जो है डेरिवेशन के रूप में ड्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का और यूरेनियम का 3 क्वेश्चन करा रहे थे। तो ध्यान से सुनिए। मिस्टर क्या नाम है? हाँ, देखिए जरा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन दिया रहेगा ये क्वेश्चन में। मास ऑफ ड्यूट्रॉन आपको दिया रहेगा प्रज्ञान सिंह 3.344 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इन द क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इट मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज गिवन एंड mass of 1 proton and 1 neutron are also given. Mass of 1 proton is 1.673 into 10⁻⁻27 kg and mass of neutron is 1.675 into 10⁻⁻27 kg. It is given. You have to find out न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन पर न्यूक्लियन। ओके, अच्छा एक और बात बता दे रहे हैं कि आप लोग बेटा कुछ के मास रख लो, क्योंकि बेटा मान लो बुक में ना दे तो आप करोगे कैसे। कुछ के मास मतलब जो है प्रज्ञान जी, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ हीलियम, इन सब चीज़ों के मास रटे रहो। वो अभी 2-2 मास रटे रहो। देखो ये किलोग्राम में मास है, एएमयू में भी मास होता है, हमें रटा हुआ है, आपको भी रटा रहे। तो देखो जरा, आपसे क्वेश्चन कह देगा, ऐसे क्वेश्चन कहेगा, इफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 3.344 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज 1.675 into 10⁻⁻27 kg, then what will be the binding energy of deuteron per nucleon? यही बताना रहेगा। तो आपको बेटा ड्यूट्रॉन तो पहले जानू क्या होता है। सबसे पहली चीज बेटा, हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ध्यान सुनो, 1H1 इज प्रोटियम, 1H2 is deuterium, 1H3 is tritium। और अंदर जाओ, प्रोटियम 1H1 means 1 electron 1 proton in its shape, 1 electron 1 proton is 1H1 means प्रोटियम। और ड्यूटेरियम means 1 electron 1 proton 1 neutron, 1H2। ठीक है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है
और न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है। ट्राइटियम 1s3, one electron is moving around its nucleus and one proton and 2 neutron is in its nucleus. Okay, 1s3 मतलब एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के बाहर है। एक बड़ी काम की बात बता रहे हैं, अगर आज से हम लाठी ले करके प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम के इलेक्ट्रॉनों को मार कर भगा दें, when electron disappeared from protium, from deuterium, from tritium, तो आप समझ रहे हो बचेगा क्या? Then you have nucleus of proton, protium, deuterium, tritium. इनके न्यूक्लियस बचेंगे ना, इलेक्ट्रॉन भग जाएंगे, केवल क्या बचेगा? और बच्चों, न्यूक्लियस ऑफ प्रोटियम इज नोन एज प्रोटॉन। प्रोटियम के न्यूक्लियस का नाम है प्रोटॉन, इसलिए प्रोटॉन को केमिस्ट्री में 1h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1h1 थोड़ी है, क्योंकि प्रोटियम 1h1 होता है और अगर उसका न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन है। और ऐसे ही मिस्टर प्रज्ञान सिंह, ध्यान से सुनिए, ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन भग जाए तो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बचेगा, एंड द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम इज नोन एज ड्यूट्रॉन। समझ आया? सिमिलरली न्यूक्लियस ऑफ ट्राइट्रियम इज नोन एज ट्राइट्रॉन। तो अब आप समझ गए व्हाट इज प्रोटियम। प्रोटियम इज एटम, एटॉमिक फॉर्म एंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। एंड व्हाट इज ड्यूटेरियम? ड्यूटेरियम इज इन एटॉमिक फॉर्म एंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज ट्राइट्रियम? ट्राइट्रियम इज आल्सो इन एटॉमिक फॉर्म, इट इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बट what is proton? Proton is the nucleus of protium. What is deuteron? Deuteron is the nucleus of deuterium. And what is tritron? Tritron is the nucleus of tritium. Similarly, alpha particle is the nucleus of helium. ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो यहां किसकी बात कर रहा है? ड्यूट्रॉन। तो इसका मतलब, ड्यूट्रॉन का मतलब आप समझो बेटा, ड्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियाई ऑफ 1s2 ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को ही तो हम ड्यूट्रॉन कहेंगे। अब अगर जो है आपको बाइंडिंग एनर्जी बतानी है, तो बाइंडिंग एनर्जी मिलती कहां से है? मास डीके से। मास डीके कैसे आता है? कैलकुलेटेड मास माइनस रियल मास, यही तो कैलकुलेटेड मास इसका निकालो। कैलकुलेटेड मास मतलब इसमें जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सबका फाइनल मास। तो 1s2 मींस 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, यही तो। यह नंबर प्रोटॉन बताता है, इसमें से इसको माइनस कर दो न्यूट्रॉन। तो कितना प्रोटॉन है न्यूट्रॉन में? 1। कितना न्यूट्रॉन है? तो अगर कैलकुलेटेड मास निकाले तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, 1 गुणे मास ऑफ प्रोटॉन, 1 गुणे मास ऑफ, तो ये कैलकुलेटेड मास हो जाएगा न्यूट्रॉन का। क्या है देखो, 1.673 इंटू 10 पावर माइनस 27, याद भी रहे 1.75 इंटू 10 पावर माइनस 27। देखो बेटा, एक एक अंक ध्यान से जोड़ना, गलती हो जाती है। 5 3 8 7 7 14 16 16 32। रियल मास ऑफ ड्यूट्रॉन दिया हुआ है 3.344 इंटू 10 पावर माइनस 27। ओके, मास डीके क्या होगा? कैलकुलेटेड मास माइनस रियल मास। समझ आ रहा है बेटा? मीन्स 3.348 इंटू 10 पावर माइनस 27 माइनस 3.344 इंटू 10 पावर माइनस 27। सीरियसली घटाना, ऊपर नीचे लिख के घटा लेना। कोई डाउट बेटा? इट इज मास डीके। सो बाइंडिंग एनर्जी E बराबर mc स्क्वायर 0.004 इंटू 10 पावर माइनस 27
तो अगेन कोई डाउट? 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 4 जा, और यहाँ बेटा 1 2 3 27 और 3 30, 8 दूनी 16, 1 डिजिट पर डेसिमल लगा देता। ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन आई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन पर न्यूक्लियन। तो इसका मतलब इसमें जितने न्यूक्लियन है उसे डिवाइड कर दे। कितने न्यूक्लियन है देख के बताओ। एनी डाउट बेटा? समझ आ गया? कोई डाउट? तो ये न्यूमेरिकल भी काम दे देगा बेटा और थ्योरी में भी काम दे देगा। जल्दी लगाओ। कई बार पूछा गया है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और बेटा प्रज्ञान हमारी तरह आपको भी वैल्यूज याद रहे। तो काबिल अब दोबारा मत पूछना, ये दिया हुआ है यहां बदतमीज देखो जरा, मास ऑफ, अब दिया रहे चाहे समझो याद रहे, अल्फा पार्टिकल। लुक हियर, 4.00 AMU, ये मास AMU में है। किसमें है बेटा? किसका मास है? अल्फा पार्टिकल। मास, आप अब 4-5 क्वेश्चन लगा लोगे तो याद हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन, याद रहे, AMU में है। अभी जो लिखे थे वो किसमें था? केजी में था। 1.673 × 10⁻⁻27। और मास ऑफ न्यूट्रॉन मालूम रहे 1.00867 AMU। ठीक है। अल्फा पार्टिकल, लुक हियर, अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ 2He4, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है। इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन, 4 में से 2 गए, 2 न्यूट्रॉन। यही तो, अगर अल्फा पार्टिकल है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, माने 2 प्रोटॉन है, और कितने न्यूट्रॉन है। अब ये क्या चीज दिया हुआ है? रियल मास 4.00150 AMU, ये रियल मास है। कौन सा मास निकाले? कैलकुलेटेड। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल contains 2 proton and 2 neutron. Hence, calculated mass will be the total mass of 2 proton and 2 neutron. Means 2 into mass of proton plus 2 into mass of neutron. यही तो बेटा, क्योंकि it contains 2 proton as well as 2 neutron. समझ में आया? Yes sir. तो 2 कॉमन ले लें। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है देखो, और जाके बेटा अगर जोड़ गलत हो जाता है ना तो आंसर नहीं आता है। सावधानी जोड़ना, आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ोगे तभी सही आएगा, नहीं गलत हो जाता है। 8 7 6 2 8 है, 8 7 0 1 1। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं? मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 2 9 18, 1 19, 15 30 31। कोई डाउट नहीं? अब मास डीके,
विनय मिश्रा भुला गए, समझ में आ रहा है? 4.03190 मास रियल कितना है? याद रहे, जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद रहे। 90 50 31 1। कोई दिक्कत नहीं था? बाइंडिंग एनर्जी यहां E बराबर mc² लगाने की जरूरत नहीं है। एक AMU बराबर 931 MEB। 1 AMU निकलवाए हैं नहीं हम? 1 AMU इक्वल 931 MEB। तो AMU कन्वर्ट कर दो MEB में, दैट्स इट। गुणा कर दो। कैसे करोगे? ये 0 304 एकम 304 हासिल है 30। 304 तिहाई 912 है, 912 और 30 942 2 हासिल है 94। 304 9 2736 हासिल 94। 6 4 10 9 3 12 क्या ही कर 2 2 4 1 5 3 2 5। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, यह तो मैंने अपन किया है। कितने न्यूक्लियर है अल्फा पार्टिकल? यह दो घास। एटॉमिक नंबर ना देखा करो, मास नंबर देखा करो, जितना न्यूक्लियन है। चार सतह 0 0 बढ़ा दिया, 4 से 28 2 22 4 5 6 20 4 7। ओके, तो अगेन बेटा मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और बेटा इसको फुर्जी बना के रख लीजिएगा, अभी से 5 नंबर की मोटिवेशन के लिए। याद ध्यान दीजिए, एनर्जी रिलीज, सभी लोग ध्यान दें। एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा ये। एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम। इस हेडिंग के द्वारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब यूरेनियम का न्यूक्लियर फिजन होता है बच्चों, तो कितना एनर्जी हम लोग गेन करते हैं। और अब यहीं पर 3 चीज बताऊंगा। हाउ मेनी चीज? 3 चीज। कि यूरेनियम का अगर एक एटम अगर जो है न्यूक्लियर फिजन दिखाता है, तो हाउ मच एनर्जी गेन फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम। माने यूरेनियम का केवल एक एटम अगर जो है न्यूक्लियर फिजन शो करे, कितनी एनर्जी गेन होती है। और फिर आपको दिखाऊंगा कि अगर 1 ग्राम यूरेनियम आप जो है न्यूक्लियर फिजन करने दो, तो कितनी एनर्जी गेन होती है। और साथ ही साथ ये दिखाऊंगा कि उससे कितना बिजली आप बना सकते हो। आपको भी दिखाऊंगा कि व्हेन यूरेनियम का 1 एटम न्यूक्लियर फिजन शो करता है, तो नियर अबाउट 200 MEB बिजली मिल 200 MEB एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब 1 ग्राम एटम जो है होता है, तो 5 × 10⁻23 इतना अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है।
और 20,000 टन TNT जो जलाते हैं उससे जितना बिजली बनती है उतना बिजली 1 ग्राम यूरेनियम के जो है न्यूक्लियर फिजन से बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले जो है एक एटम जब न्यूक्लियर फिजन शो करे तो कितना एनर्जी गेन होगी ये बताएंगे। काबिल, न्यूक्लियर फिजन सबसे पहले किसने देखा? हाँ, कौन देखा बेटा? ऑटो हान एंड स्टॉमैन। ठीक है, और एक एटम जब जो है रिलीज होगा या फिजन दिखाएगा कितनी एनर्जी गेन होगी। देखिए रिएक्शन याद करिए, यूरेनियम न्यूक्लियस 92U235, इस पर न्यूट्रॉन पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई। जानवी बेटा ये क्या बन गया था? 92U236। लोगों ने समझा कि रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, लेकिन ये तुरंत टूट गया। कल हम ये बताए थे कि बेरियम में टूटा और क्रिप्टन। ऐसा कब हुआ? सब याद रहा है? जो बता रहे बेटा याद किए रहोगे तभी तो एग्जाम में लिख पाओगे। ध्यान दो जरा जानवी बेटा, 56 BA 144, 36 क्रिप्टॉन 89, याद है? प्लस 3 न्यूट्रॉन भी बने 0 N 1 और प्लस एनर्जी जो है रिलीज हुई। अब हमें बतानी है कि 1 एटम जब जो है यूरेनियम का केवल 1 एटम न्यूक्लियर फिजन करता है कितनी एनर्जी गेन होती है। तो अब आप बताओ बेटा प्रज्ञान बेटा, इधर वाला मास निकाल लें, उधर वाला मास निकाल लें, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मास डीके हो जाएगा और मास डीके से एनर्जी हम बना लेंगे, है ना बेटा? तो पहले इधर LHS में क्या क्या है? LHS 92U235 प्लस 0 N 1, यही है मास ऑफ LHS, माने मास ऑफ, यही ना? LHS में क्या क्या है? क्या देखो बोर्ड पे रखे, तो यहां पर देख रहे हो बेटा सबका मास याद रहना चाहिए। प्रज्ञान बेटा हम सबका मास याद करा दें। देखो बेटा यूरेनियम का मास होता है 234.99 AMU। किसका? और इसका होता है बेरियम का 143.87 AMU। इसका होता है 88.90 AMU। ठीक है, जब तक इनके मास नहीं याद रहेंगे तब तक कैलकुलेशन बेकार है ना बेटा? तो अब देखो जो है जानकार आदमी LHS में 92U235, यूरेनियम का मास क्या बताया बेटा? 234.9 प्लस न्यूट्रॉन। अभी भी थोड़ी देर पहले 1.00867 लिखे थे, तो उसको हम यहां पर लिख रहे हैं 1.01 नियर अबाउट में। याद करो ऐसे था ऐसे, तो ये एक बढ़ा, इसको एक मान का हटा करके एक बढ़ा दिया, तो न्यूट्रॉन का मास नियर अबाउट में 1.01। ठीक, 1.00867 एकदम रियल होता है। यहां पर समझ में आया बेटा? अब बताओ ये कितना हो गया? इसको जोड़ोगे 234 1 235 1 236 AMU LHS का मास आया। कहीं कोई दिक्कत? किसका मास आया बेटा? अब मास ऑफ RHS जो बन रहा है उसका मास, तो RHS में क्या है? बेरियम। इसका मास क्या बताए हैं? 143.87 और 88.90 प्लस 3 गुणे 1.01।
कोई डाउट? जोड़ो 7 8 9 17 8 3 11 1 12 14 8 प्लस गुणा कर दो 2 32 3 77 3। कोई डाउट बेटा? यहां तक समझ में आया? अब बेटा मास डीके, डेल्टा एम, दोनों मास का डिफरेंस। शुरुआत में हमारे पास 236 AMU यूरेनियम था, लेकिन बना कितना? तो 0.20 AMU की डीके हुई। एनर्जी रिलीज्ड, बेटा ये एक एटम का फिजन हो रहा है, एक एटम का फिजन हो रहा है कि नहीं? एक एटम का फिजन हो रहा है। तो 0.20 AMU माने 931 MEV। क्या डाउट है बेटा? 2 एकम 2 2 3 6 2 9 18 MEV। इसको जो है नियर अबाउट 200 MEV मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है? लगभग। ठीक, तो अब हमसे पूछे कोई कि यूरेनियम के एक एटम के डिफ्यूजन से कितना एनर्जी गेन होती है, तो यूरेनियम के एक एटम के डिफ्यूजन से या फिजन से 200 MEV नियर अबाउट में एनर्जी इतना रिलीज होती है। ठीक है बेटा? 190 MEV कहो, लेकिन कैलकुलेशन में सरलता के लिए हम उसको 200 MEV कह सकते हैं। ये जो है नियरली कितना हुई? 190 MEV, 86 90, लेकिन कैलकुलेशन में सरलता के लिए कितना ले लेते हैं? 200। तो एक आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? एनर्जी गेन बाय न्यूक्लियर फिजन ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम इक्वल 200 MEV। समझ में आया बेटा? अब अगर हम आपको 1 ग्राम यूरेनियम दे दें तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम यूरेनियम। ठीक है, ये तो पता लग गया कि एक यूरेनियम एटम से 200 MEV एनर्जी मुक्त होती है, रिलीज होती है। अब बेटा 1 ग्राम यूरेनियम अगर है तो आप पहले सोचो कि 1 ग्राम यूरेनियम में कितने यूरेनियम के एटम बनेंगे। यूरेनियम का एटॉमिक वेट कितना है? 235। माने अगर 235 ग्राम यूरेनियम ले लिया जाए, देन दैट विल बी 1 मोल ऑफ यूरेनियम एंड दैट हैज 6.023 into 1023 एटम ऑफ यूरेनियम, माने n यूरेनियम होंगे। देखो 235 ग्राम ऑफ यू इक्वल 1 मोल ऑफ यू। इसका मतलब n एटम ऑफ यू। कोई डाउट? ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया? अगर यूरेनियम 235 ग्राम लिया जाए तो इसका मतलब जो है 1 मोल यूरेनियम है, माने यूरेनियम के क्या एटम है? तो एक एटम 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? अब जान 235 ग्राम में कितने एटम है? सो टोटल यू एटम इन 1 ग्राम, 235 ग्राम में कितने हैं? तो 1 ग्राम में कितने होंगे? इधर क्लियर? क्लियर? आप समझ रहे हो? कैलकुलेशन है 6.023 गुणे 10 की घात 23 अपॉन 235 एटम। ये आपके पास इतना एटम आ गए।
एक एटम से कितना एनर्जी गेन होती है? 200 MeV। तो इतने एटम से कितना एनर्जी गेन होगी? 200 से मल्टीप्लाई, है ना? सो यहां लिख दें एनर्जी रिलीज्ड बाय न्यूक्लियर फिजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम। 1 ग्राम यूरेनियम से कितना एनर्जी रिलीज होगी? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 235 इंटू 200। आप देख रहे हो ऊपर 200 है, नीचे 235 है। डिवाइड करोगे अगर इसको तो 2.54 गुणे 10⁻21 नियर अबाउट में आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? नहीं, 200 से गुणा भी होगा इसमें। 5 गुणे 10 की घात, ये इसका डिवाइड बता रहे थे। MeV एनी डाउट? समझ आ रहा है बेटा? अरे वैसे समझो 200 है, 235 से लगभग कट जाएगा, 1 से कम बार जाएगा। 6 का 1 से कम से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, 6 से कम वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा कि व्हेन यूरेनियम 1 एटम फिजन शो अप करता है तो 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है, और जब 1 ग्राम एटम जो है न्यूक्लियर फिजन शो करता है तो 5 गुणे 10 की घात 23 MeV एनर्जी जो है मुक्त होती है। और इतनी जो है यूरेनियम, इतनी एनर्जी से 20,000 किलोवाट बिजली बनाई जा सकती है। कितना बिजली बनाई जा सकती है बेटा? दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर 2 × 10⁴ वाट घंटा एनर्जी। कोई डाउट बेटा? तो 2000 किलोवाट घंटा, ये इतना एनर्जी जो है हम गेन कर सकते हैं। KW लिखते हैं या यूनिट? तो आप समझ गए कि यूरेनियम का अगर एक एटम न्यूक्लियर फिजन करता है तो 200 MeV बिजली बनती है, तो 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है। और 1 ग्राम यूरेनियम का फिजन होता है तो बेटा 5 गुणे 10 घात 23 MeV एनर्जी रिलीज होती है। इतनी एनर्जी से 20,000 किलोवाट घंटा या 20,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकता है। दैट इज क्लियर?